سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے۔ یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خدا میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ۔ آج کلام میں سیکھنے جا رہے ہیں جس کا مول وشا ہے سننا اور دیکھنا۔ روح کا سننا جسم کا سننا نہیں، روح کا دیکھنا جسم کا دیکھنا نہیں، کیونکہ روحانی آدم یعنی نر کا سننا جسمانی آدم کا سننا نہیں، اور روحانی ہوا یعنی ناری کا دیکھنا جسمانی ناری کا دیکھنا ہے۔ لکھا ہے جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے، اور روحانی جو نیت ہے وہ زندگی اور اطمینان ہے۔ جسمانی طور پر ہم نر اور ناری یعنی میل اور فیمیل جینڈر شریرک اور سنسارک طور طریقے پر جسم کے طور پر طے کرتے ہیں، لیکن کلام میں، مسیح میں، خدا میں، روح میں نر اور ناری کام کے وسیلے طے ہوتا ہے۔ لکھا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کام کے بارے میں کلام میں لکھا ہے ہر ایک انسان کی پہچان اس کے کام اور کلام سے ہوتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ مسیح میں سننا اور دیکھنا کیا ہے؟ سننے اور دیکھنے سے وشواس پیدا ہوتا ہے۔ سننے میں جو وشواس پیدا ہوتا ہے وہ سننا اور سن کر اس کو کلام میں عمل کرنا اور عمل کرتے رہنا یعنی لگاتار وشواس میں بنے رہنا، سن کر وشواس میں چلتے ہوئے اور پورے ہوتے دیکھنا ان کاموں کو۔ مگر دیکھنے میں پہلے دیکھنا اس کام کو اور پھر وشواس کرنا، ویسے ہی پہلے کام کو دیکھنا اور خدا میں کام کو دیکھ کر وشواس میں، اور خدا میں سن کر وشواس میں بنے رہنا، اور دیکھ کر وشواس میں آنا اور کام دیکھ کر پھر وشواس لانے میں فرق ہے۔ خدا کا بولنا اور آدم کا یعنی نر کا سننا۔ خدا کا بولنا آدم کا یعنی نر یعنی میل جینڈر کا سننا ہے خدا میں۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور حکم بول کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بولنے سے، اور جب ایک بولتا ہے دوسرا سنتا ہے۔ بولنا اور سننا ہی ہمیں خدا میں نر یعنی میل جینڈر یعنی آدم بناتا ہے۔ سن کر وشواس کرنا۔ عورت نے جو دیکھا، اور عورت نے پہلے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ عورت نے دیکھا۔ وشواس میں جو دیکھ کر وشواس کرتے ہیں وہ وشواس میں عورت یعنی ناری برتی کے وشواسی ہیں، یعنی فیمیل جینڈر کے وشواسی۔ اگر آپ سن کر وشواس کرتے ہیں تو آپ آدم یعنی نر برتی کے وشواسی ہیں۔ آدم نے خدا کو سنا اور خدا نے آدم سے کہا یعنی حکم دیا۔ عورت نے ابلیس یعنی اس چالاک سانپ کو سنا، اور عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، تو جو ابلیس ہے وہ سانپ ہے، چلاک سانپ، وہ دکھاتا ہے، وہ دکھا کر وشواس دلاتا ہے، دکھا کر۔ اور
औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तो चालाक सांप है वो हमारे विश्वास का इस्तेमाल जो करता है वो दिखाता है और देखकर विश्वास, उसमें देखकर विश्वास होता है। देखकर विश्वास करना जैसे औरत की आजमाइश हुई, देखकर विश्वास करने की उसी तरह मसीह की भी आजमाइश हुई। सब चीजें मांदगी से पुर हैं। आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से असुदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वो ही फिर होगा और जो चीज बन चुकी है वो ही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नहीं है? वो तो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। यूं ही खुदा ने औरत को आदम को मददगार के तौर पर दिया, तभी उसकी आजमाइश हुई। आदम के वसीले औरत मददगार के तौर पर खुदा ने आदम को दिया और हव्वा के वसीले यानी औरत के वसीले आदम की आजमाइश हुई, यानी मर्द की औरत के वसीले। औरत के वसीले चालाक सांप से आजमाइश हुई। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया और उसके बाद ही आदम की आजमाइश हुई जब उसको मददगार के तौर पर औरत को दिया, और आदम के विश्वास की आजमाइश हुई और वो मददगार द्वारा धोखा खा गया। और यूं ही जब यस्सु को भी पवित्र आत्मा को खुदा ने मददगार के तौर पर दिया, तो फिर उसी तरह औरत यानी रूह के वसीले आजमाइश हुई। सांप जिस तरह चालाक सांप उस औरत के पास आया जो आदम से निकाली गई, इसी तरह जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। तो शैतान के आजमाए जाने के लिए रूह उनको जंगल में ले गई, यानी कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गई, तभी इब्लीस से आजमाया जाए, उसी तरह जिस तरह औरत के वसीले आदम की आजमाइश हुई। और 40 दिन और 40 रात फका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, जिस तरह औरत से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यानी फिर वो दिखा रहा है कि देख के विश्वास कर कि पत्थर रोटियां बनेगी, कि फिर तेरा विश्वास कामिल हो। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। क्योंकि आदम के मुंह से हुक्म निकला और आदम ने सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन औरत के वसीले वो धोखा खा गया। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया
और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर की ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी बादशाहतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। इब्लीस ने उसे कहा इसलिए आजमाया कि यीशु देखकर विश्वास करे, और जिस तरह हव्वा ने धोखा खाया वो भी औरत यानी रूहुल कुद्स के वसीले धोखा खाए, मगर ऐसा ना हुआ। और आदम ने फरेब नहीं खाया। आदम ने पहले भी फरेब ना खाया था और आदम ने यानी दूसरे आदम ने, यीशु मसीह ने भी फरेब ना खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद जन्ने के वसीले से नजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। आदम का सुनना और खुदा का हुक्म सुनकर विश्वास में बने रहना। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, सिर्फ सुनना मसीह के कलाम से। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। यहां पर यह नहीं लिखा कि जिसकी आंख हो वो देखे कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है, क्योंकि खुदा ने हुक्म जब दिया आदम से कहा और आदम ने सुना, इसलिए लिखा गया कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। ईमान है, विश्वास है। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शिरकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। हमने कलाम सुना, पहले सुना फिर देखा, ना औरत की तरह पहले देखा और फिर विश्वास किया। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने ईमान में सबसे पहले कहा कि रोशनी हो जा, बोला कि रोशनी हो जा, और फिर रोशनी हुई। और फिर रोशनी को देखा कि रोशनी अच्छी है। ये नहीं औरत की तरह पहले रोशनी को देखा, देखकर कहा कि रोशनी अच्छी है, और फिर खुदा ने विश्वास किया।
अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तेमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं, पता करते हैं, कंफर्म करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। खुदा के कहने से, देखने से नहीं, कहने से बने हैं। यह नहीं कि जो कुछ नजर आता है, दिखता है, जाहिरी चीजों से बना हो। पहले कहा, फिर देखा और फिर कहा अच्छा है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थीं, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए किश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लाने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तहम रवाना हो गया। ईमान ही से उसने वादा किए हुए मुल्क में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदो बाश की गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे कामों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायेदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मीमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सिनाए याश के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कासिर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनांचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत यह कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनांचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और ईसाऊ दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असा के सिरे पर सहारा लेकर सिजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूब सूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंदरोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ में बदसलूकी का बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। और मसीह के लिए
लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्से का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फसाद करने और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि प्लॉटों का हलाक करने वाला बनी इस्राएल का हाथ ना लगाए। ईमान ही से वो बाहरे कुलजुम से इस तरह गुजर गया जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों से ये कसद किया तो डूब गए, यानी लाल समंदर में से वो गुजर गया। ईमान ही से यरीहो की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से रहाब फाहिशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां की गिदयोन और बर्राक और शिमशोन और यिफ्ता और दाऊद और समविल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से बादशाहतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दे फिरके जिंदा पाए, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों, जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, और अगरची इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, ताहम उन्हें वादा की हुई चीजें ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज ताजवीज की थी, ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाएं। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें, यानी विश्वास में, जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को ताकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उसको गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे खुदावन की तंबीह को ना चीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो
कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे, ना कि बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबीदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफिल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। थोमा ने औरत की तरह देखकर विश्वास किया, मगर उन बारों में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोआम कहते हैं, यस्सु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद यानी 8 दिनों के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, तो यस्सु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यस्सु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, हव्वा की तरह, औरत की तरह। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए, आदम की तरह। चुनांचे हमें उम्मीद के वसीले से नजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा, लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफात करती है जिनका बयान नहीं हो सकता। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है और जितने खुदा की मर्जी से चलते हैं वो रूहुल कुद्स की हिदायत से वो ही बेटे हैं। रूहुल कुद्स में वो अब तक कायम रहेगा, क्योंकि आंखों से देखकर खुदा में मसीह को ताकते हुए चलना दिल के अंदर ख्वाहिश को पैदा करता है। हां, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे, ना बुत प्रस्त, ना जिनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम, और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए। ये पुराने अहदनामे की बात करके नए अहदनामे में हमारी गवाही हो रही है कि रूह से धुल गए, यानी यीशु मसीह के जी उठने के बाद के वक्त की बात हो रही है। रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। किसके साथ? यीशु मसीह के जी उठने के साथ। मसीह यीशु के साथ सलीब पर 2 बदकार लटकाए गए। उसमें से एक शख्स ने शिकायत की और दूसरे ने इकरार और विश्वास किया।
जिस ने देखकर विश्वास नहीं किया बल्कि पहले विश्वास किया और फिर देखा। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिब है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, एक ने कहा, बदकार ने कहा, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि बदकार खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते, लेकिन अब मसीह यस्सु के सलीब दिए जाने से और रूहुल कुद्स में जी उठने से। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाहत में आए, यानी जब तू मुर्दों में से जी उठे, तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही उसी वक्त, उसी रोज कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने विश्वास किया कि वो बादशाहत में आ चुका है। इस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, जो कि उस चीज को एक बदकार ने जाहिर किया। कहां पर? सलीब पर। क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। और हमेशा की जिंदगी किसने पाई? विश्वास में। बदकार ने, जो मसीह यीशु के साथ सलीब पर लटकाया गया। सबसे पहले मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। जिनके साथ यीशु मसीह हर वक्त रहे उन्होंने यकीन ना किया, देखकर भी यकीन ना किया। लेकिन जो यीशु को जानता ना था ना उसके साथ रहा, उसने उसके साथ सलीब पर लटके हुए, सजा पाते हुए उसको बादशाहत में देख लिया, ईमान में देख लिया। तो खुदा ने कहा, तू मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। उसके शागिर्दों ने कहा, देख, अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। ये यीशु मसीह के सलीब देने के पहले की बात चेलों के साथ मसीह यीशु ये वार्तालाप कर रहे हैं, और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाते हो? इससे पहले ईमान नहीं था कि मैं बाप से निकला हूं। क्या तुम अब ईमान लाते हो? देखो, वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम सब परगंदा होकर अपने अपने घर की राह होगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि बाप मेरे साथ है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, जिस तरह औरत ने देखा। यानी हम बात कर रहे हैं देखकर विश्वास करना और विश्वास करना और फिर देखना, इसमें फर्क है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, क्योंकि वो ईमान तो लाते नहीं थे, इसीलिए पहले दिखा, हम फिर विश्वास करेंगे, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब मेरा यकीन करो। नबियों के सहीफों में यह लिखा है कि वो सब खुदा की तरफ से तालीम पाए हुए होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना
बाप से सुना और सीखा, यानी बाप जो है, बाप से जो सीखता है सुनकर सीखता है, देखकर नहीं, सुनकर सीखा, वो मेरे पास आता है जिसने सुनकर सीखा, बाप से सुनकर सीखा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, तो मसीह के पास वो नहीं आ सकता जिसने देखकर विश्वास किया। और वो आता है, कलाम में साफ साफ लिखा है कि वो मेरे पास आता है जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है, बाप से सुना है और सीखा है। और बाप किसके वसीले सिखा रहा है? यीशु मसीह के वसीले से। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यह नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते, देखकर भी नहीं ईमान लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज ना निकालूंगा, क्योंकि मैं आसमान से उतरा हूं ना इसलिए कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। शुक्रिया जिन्होंने एंड तक इस वीडियो को देखा और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने मसीह भाई बहनों को इस चैनल को शेयर कीजिए। और आज हमने इस टॉपिक पर बात की कि सुनकर विश्वास करना और देखकर विश्वास करना। सुनकर विश्वास में चलना और फिर उस काम को देखना, और देखकर विश्वास करना यानी पहले काम देखना और फिर विश्वास करना। और इन दोनों में फर्क है। और जो सुनकर विश्वास आता है वो बाप से है। खुदावंद आपको समझ की रूह दे, मुकाशफा की रूह दे, और इत्मीनान और मसीह का इत्मीनान, शलोम आपके दिलों में ठहरा रहे, और आपके दिल की आंखें रोशन हो जाएं।